So, hello students, let's move on to the next part of the poem, The Lotus Eaters. So, we were talking about those sailors who have eaten the lotus fruit. For them, all labor, all activity, all work is hateful. They want to remain in the same state of lethargy. They say that everything in nature is free. Nothing in nature, the leaves, the flower, the fruit, all grow at one place till they fall and die out. They don't toil, so why should they work incessantly? So previous in the previous line, the poet is talking about the plants, how they how the plant जो है it becomes green and broad and nobody takes care. It automatically gets sunlight during the noon time, and during the night it gets the moonlight. It gets dews also, and then with the passage of time it turns yellow, then falls down and floats down in the air. So it has not to work on its own. Similarly, there is the case of the full juiced apple. Next is the case of apple. It becomes full of juice. It is sweetened with full juice during the summer light, with the summer light. Then waxing over mellow, then it becomes mature, drops in a silent over autumn night. So it becomes fully juiced, and then with the passage of time it becomes over mature, then it drops down in autumn. All its allotted length of days. Everything in nature has its fixed time. It lives there. The flower ripens in its place, ripens and fades and falls and hath no toil. Flowers also ripen and then fade and then fall down. They don't have to do any toil. Toil मतलब लेबर. कि फूल जो है वो भी अपने आप से मैच्योर होते हैं, फिर फेड हो जाते हैं, फिर गिर जाते हैं. उनको भी कोई लेबर नहीं करनी पड़ती है ना. जैसे फ्रूट्स को एप्पल की बात कर रहा है कि एप्पल को कोई लेबर नहीं. Fast rooted in the fruitful soil, so they are fastly rooted in the soil. They don't have to do any work. So they grow at one place in the fertile soil. उपजाऊ मिट्टी में एक ही जगह पे ग्रो करते हैं, and their life is the life of rest. चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, है ना. So he says कि only human beings they have to work hard. So this is the fourth stanza, and in the fourth stanza he feels that life is short. It would soon come to an end. During the short time allotted to them, they would like to lie down in peace and rest. कि जिंदगी जो है वो छोटी सी है. छोटी सी लाइफ में सबको एक लिमिटेड टाइम मिला है. उस लिमिटेड से टाइम में वो क्यों मेहनत करें, क्यों ना वो आराम करें और लाइफ को एंजॉय करें. And I told you that these sailors they are under the effect of lotus fruit. So because of that they hate doing any type of work. Hateful is the dark blue sky vaulted over the dark blue sea. The sky overcast with dark clouds is hateful to them. Because the sky signifies storm, danger, hard labor on the heights. वो कहते हैं कि ये स्काई हेटफुल इज द डार्क ब्लू स्काई. उनको वो स्काई नहीं पसंद है ना. स्काई कौन सा है? ब्लू कलर का स्काई जो ओशन के ऊपर है. वॉल्टेड ओवर द डार्क ब्लू सी. सी क्यों ब्लू है? क्योंकि स्काई की रिफ्लेक्शन है. तो जैसे कि वी हेट दिस स्काई which is vaulted over the blue sea. क्योंकि जो स्काई है वो क्या चीज सिग्निफाई कर रहा है? स्ट्रॉन्ग, डेंजर, हार्ड लेबर.
है ना। कभी भी आंधी तूफान बरसात आ सकती है और वो ओशन के पास है। और बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ दैट लोटस फ्रूट दे हेट डूइंग नी टाइप ऑफ वर्क, दे वांट ओनली रेस्ट एंड पीस, so they hate this dark blue sky. Death is the end of life. Why should life all live again? They say कि death is the ultimate end of life. अगर डेथ ही एंड है लाइफ का तो वाई शुड दे लेबर थ्रू आउट लाइफ, तो फिर वो लाइफ में लेबर क्यों करें? लेट्स अलोन, है ना, लेट्स अलोन, दे आस्क यूलिसिस टू लेट देम हैव रेस्ट. Time drives on word fast, and in a little while our lips are dumb. Time is running onward. Time is running onward fast. Time is running, and in a little while our lips are dumb. कि समय तो आगे बढ़ रहा है और थोड़े समय में हमारे लिप्स जो है वो भी डम हो जाएंगे, है ना। थोड़े समय में वो भी डेड हो जाएंगे. लिप्स आर डम का मतलब कि दे विल डाई. लेट्स अलोन, व्हाट इज इट दैट विल लास्ट. वो यूलिसिस को, जो उनका लीडर है, उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी हमें अकेले रहने दो, लीव अस, डोंट आस्क अस टू डू एनी वर्क, हम अकेले रहने दो, हमें मत कहो कि कुछ काम करें. व्हाट इज इट दैट विल लास्ट, कि ऐसी कौन सी चीज है जो परमानेंट रहनी है. एवरीथिंग विल डिके एंड डाई. All things are taken from us and become portions and parcels of the dreadful past. कि लाइफ में सब चीजें समय के साथ हमारे से ले ली जानी है और सब चीजें हमारे पास्ट का ड्रेडफुल पार्ट बन जाएंगी. लेट्स अलोन, लेट्स अलोन, व्हाट प्लेजर कैन वी हैव टू वॉर विद इविल, है ना. लेट्स अलोन कि हम अकेले ही रहेंगे. लेट्स अलोन का मतलब है कि भी we should live in rest and peace. What pleasure can we have to war with evil? There is no pleasure in fighting against evil. कि वॉर, इविल के अगेंस्ट वॉर करने में क्या खुशी मिलेगी? कुछ नहीं खुशी मिलेगी. इज देयर एनी पीस इन एवर क्लाइंबिंग अप द क्लाइंबिंग वेव? वो कहते हैं कि देयर इज नो पीस in climbing up the climbing wave. See here again alliteration is there, है ना. कि ऊपर उठती हुई समुद्र की लहरों के साथ ऊपर उठने में, क्लाइंब करने में कहीं कोई शांति है? नो, देयर इज नो पीस इन डूइंग लेबर, क्लाइंबिंग अप द क्लाइंबिंग वेव. उठती हुई समुद्र की लहरों के साथ चढ़ने में, चढ़ती हुई लहरों के साथ चढ़ने में कोई peace है? No, there is no peace. All things have rest. All things have rest and ripen towards the grave. All things in nature, they have rest. And finally they mature and they decay and die and reach the grave in silence. सारी चीजें चुपचाप आराम करती हैं, मैच्योर होती हैं, फिर वो खराब हो जाती हैं और फिर वो एंड हो जाता है चुपचाप. राइपन, फॉल एंड लीव्स. मैच्योर होती हैं, गिर जाती हैं, डेड हो जाती हैं. गिव अस लॉन्ग रेस्ट और डेथ, डार्क डेथ और ड्रीमफुल. सो दे वांट दैट दे शुड बी गिवन रेस्ट, है ना. डार्क डेथ का मतलब डेथ विच टेक्स वन टू द डार्कनेस ऑफ द ग्रेव. या तो हमें रेस्ट मिले या हमें डेथ मिले. वो डेथ जो हमें डार्क डेथ है, जो वो डेथ जो हमें ग्रेव की तरफ ले जाएगी. और ड्रीमफुल एज, और नहीं तो हम क्या है, आराम से लेटे हुए ड्रीमफुल पोजीशन में रहे, हम ड्रीम्स लेते हैं. एक्चुअली दे डोंट वांट टू डू एनी वर्क नाउ, कि वो अब कोई भी काम नहीं करना. How sweet it were hearing the downward stream, with half shut eyes ever to seem, falling asleep in half dream. It's really sweet. It's
really very sweet. Those sailors are saying it's really very sweet to lie down with half shut eyes. It's really sweet to lie down with half shut eyes, hearing the sound of downward stream and falling asleep in a sort of dream. कि कितना मजा आ रहा है कि हम आधी खुली आंखों के साथ, आधी बंद आंखों के साथ लेटे हुए हैं और हम उन स्ट्रीम्स को, वाटर स्ट्रीम्स जो है वो कैसे नीचे की तरफ आ रही हैं, उनकी आवाज सुन रहे हैं और हम ऐसे सोए हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे हम आधी स्वप्न अवस्था में हों। टू ड्रीम एंड ड्रीम like yonder amber light which will not leave the mirror push on the fire. To dream and dream, sailors like continue dreaming like yonder. Yonder का मतलब होता है there. Amber light मतलब the light of the setting sun. The light of the setting sun. है ना? They want to have in a dream-like position and they want to enjoy that sunlight. Yonder मतलब कि वो वहां पर जो सनलाइट है उसकी तरह से वो सनलाइट विच विल नॉट लीव द मिर बुश होना है। वो वहां जो हाइट पे, हिल पे, हाइट मतलब हिल पे, कि हिल पे जो वो मिर बुश है, मिर बुश एक प्लांट का ही नाम है ना, एज एवरग्रीन बुश हमेशा ही रहती है वो झाड़ी वहां पे। तो वहां हिल पे जो उस झाड़ी पे जैसे हमेशा वो गोल्डन सी लाइट रहती है, उस गोल्डन सी लाइट, वो लाइट कौन सी है? ऐसे लाइट है जैसे वो एम्बर लाइट हो, जैसे कि वो सनसेट की लाइट हो, है ना। प्रीवियसली मैंने तुम्हें बताया कि भी वहां पे गोल्डन कलर की लाइट रहती है हमेशा ही, ऐसा लगता है उस आइलैंड पे जैसे सनसेट हो। तो उनको लगता है कि ऐसे ड्रीम में ही रहना कितना अच्छा है, जैसे कि वहां पे उस गोल्डन लाइट जो है, जो वहां हाइट पे, हिल पे, मिरबुश पे हमेशा रहती है, ऐसे ही हम भी लगातार ड्रीमफुल पोजीशन में ही रहें। टू हियर ईच अदर्स विस्पर्ड स्पीच, और एक दूसरे की आवाज सुने तो आवाज कैसी आएगी? जैसे विस्पर्ड हो, जैसे कि हमारा साथी सिर्फ कुछ फुसफुसा के कह रहा हो। ईटिंग द लोटस डे बाय डे, और ऐसा कब होएगा? व्हेन दे विल बी ईटिंग लोटस फ्रूट एवरी डे। टू वॉच द क्रिस्पिंग रिपल्स ऑन द बीच। क्रिस्पिंग रिपल्स, रिपल्स यू अंडरस्टैंड, है ना। आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो वहां छोटा सा पानी का वो बन जाता है ना, भंवर सा, है ना। तो क्रिस्पिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो उसी समय बन रहे हैं। स्मॉल कर्लिंग वेव्स, है ना, स्मॉल कर्लिंग वेव्स। पत्थर फेंका, जहां जिस जगह पे आपने पत्थर फेंका वहीं पे वो गोल सा पानी का वो चक्री सी बन जाती है, छोटी सी, है ना। क्रिस्पिंग इसलिए कि वो बनती रहती है, थोड़ी देर के लिए होती है, फिर आपने पत्थर फेंका फिर बन गई, फिर फेंका फिर बन गई, या हवा की वजह से भी वो जगह जगह पे ऐसे रिपल्स बनते रहते हैं। बीच मतलब किनारे। तो कहता है कितना अच्छा लगेगा कि हम हाफ शट आई से, आधी खुली आंखें, आधी बंद आंखों से हम उन रिपल्स को देखते रहें। एंड टेंडर द कर्विंग लाइंस ऑफ क्रीमी स्प्रे। क्रीमी स्प्रे का मतलब वो जैसे झाग बन जाती है कई बार लहरों में, पानी के फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो कैसे हम, कहता है कि हम उन रिपल्स को देखते रहें, उन झाग को, उस स्प्रे को देखते रहें। टू lend our hearts and spirits wholly to the influence of mild minded melancholy। हम अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने मन से पूरी तरह से हम प्रभावित रहें। किससे प्रभावित रहें? माइल्ड माइंडेड मेलनकली। देखो फिर एलिट्रेशन आया ना, कि हम एक मेलनकलिक मूड में रहें, है ना। हम उस लोटस प्लांट की वजह से जो एक सैडनेस है, मेलनकली मतलब सैडनेस है, जो एक स्लीपीनेस है, हम उसी के प्रभाव में रहें।
टू म्यूज एंड ब्रूड एंड लिव अगेन इन मेमोरी, हम सोचें, विचार करें और मेमोरी में वापस जिंदा हों, विद दोज ओल्ड फेसेस ऑफ आवर इन्फेंसी, और हमें हमारे बचपन के वो पुराने चेहरे याद आए, हीप्ड ओवर विद अ माउंड ऑफ ग्रास, जो अब मर गए और उनकी जो कब्र है वो कैसे बन गई, जैसे घास का टीला हो, जैसे कि वो टीला हो और उसके ऊपर जैसे डेड बॉडीज को जो पुअर पर्सन है वो क्या करते हैं, वो दबा देते हैं जब ग्रेव को एक जगह पे, ग्रेव में मतलब मिट्टी में दबा देते हैं और उसके बाद उस मिट्टी पे घास उग जाती है, तो वो उठी हुई सी जो जगह है जिसको टीला कहते हैं, दैट इज, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं माउंड, है ना। तो वो कहता है कि बस वो बचपन याद आ रहा है, वो बचपन के वो चेहरे पुराने याद आ रहे हैं जो अब क्या है कि एक टीला के नीचे दबे पड़े हैं, दब गए हैं मरने के बाद, और उसके ऊपर घास आ गई। टू हैंडफुल ऑफ वाइट डस्ट शट इन एन अर्न ऑफ डस्ट, तो वो क्या बन गई, एक मिट्टी धूल, दो मुट्ठी भर रेती तो है व्यक्ति, मरने के बाद उसको दबा देते हैं या वो बॉडी जला देते हैं तो वो क्या हो गया, एक राखी बन के रह गया। शट इन एन अर्न ऑफ ब्रास, अर्न क्या होता है, वास होता है, जैसे कोई भी बर्तन, ब्रास का जिसके अंदर उस पर्सन की मरने के बाद या जलाने के बाद उसके राख को उसमें इकट्ठा किया जाता है। तो व्यक्ति की कीमत तो सिर्फ इतनी ही है ना, कि उसको वो एक मुट्ठी भर धूल ही है, जब वो धूल जो ब्रास में रखी जाती है, ब्रास के अन्न में रखी जाती है, ब्रास तो पीतल हो गया है ना, अन्न ग्रीक पीपल जो है वो अन्न में रखते होते थे, अन्न मतलब एक वास, गुलदस्ता से टाइप में। So in the next stanza, the poet is talking about, no, it's the same one. Dear is the memory of our wedded lives. So then those sailors they recall their wedded lives. फिर वो sailors अपनी married life को याद कर रहे हैं. And dear the last embraces of our wives. कहता हमें ये भी याद है कि last time जब वो युद्ध पे war के लिए चले थे तो उनकी wives उनको कैसे कैसे वो अपनी वाइफ से गले मिले थे आखिरी बार, एंड देयर वार्म टीयर्स, कैसे उनकी आंखों में गरम गरम आंसू थे, बट ऑल हैड सफर्ड, लेकिन अब तक तो कहता है कि नो डाउट उनको सब कुछ याद है, अपनी मैरिड लाइफ भी याद है, उनको ये भी याद है कि उनकी वाइफ से कब वो लास्ट टाइम मिले थे, गले मिले थे। फिर उनके आंखों में कैसे गरम गरम आंसू हैं, लेकिन अब क्या है, सब कुछ चेंज हो गया, ऑल हैव सफर्ड चेंज, अब तो सब कुछ चेंज हो गया। फॉर श्योरली नाउ आवर हाउस होल्ड हर्ट्स आर कोल्ड, हर्थ का मतलब होता है चूल्हा, है ना। तो वो कहते हैं कि अब तो बहुत साल हो गए, निश्चित रूप से हमारी जो वाइफ्स हैं वो या तो मर गई होंगी, है ना, हमारे चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ गए होंगे, कहने का मतलब। आवर सन्स इनहेरिट अस, हमारे जो बेटे हैं वो हमारे उत्तराधिकारी बन गए होंगे, है ना। अब तो सब कुछ पे अधिकार किसका हो गया होगा, हमारे सन्स का, हमारे बेटों का हो गया होगा। आवर लुक्स आर स्ट्रेंज, और हम दिखने में भी बड़े अजनबी से लगते हैं, अजीब लगते हैं। एंड वी शुड कम लाइक घोस्ट टू ट्रबल जॉय, और अब जब हम उनके पास जाएंगे, यानी अगर अब हम अपने नेटिव टाउन में जाएंगे तो हम वहां पे भूत जैसे लगेंगे, हम तो बिल्कुल अजनबी लगेंगे, भूतों जैसे लगेंगे, जब इतने सालों बाद हम इतने बूढ़े हो गए और इतने अजीब से हो गए युद्ध की वजह से जाने के बाद, तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम उनकी खुशियों को परेशान करने, खराब करने चले हैं। और एल्स द आइलैंड प्रिंसेस ओवरबोल्ड हैव ईटन आवर सब्सटेंस, और या उस आइलैंड के जो और कोई लोग हैं जो बहुत ज्यादा बोल्ड हैं, उन्होंने हमारी सारी सब्सटेंस को खा लिया होगा, सब्सटेंस का मतलब हमारी सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद उन्होंने हड़प ली होगी। एंड द मिंस्ट्रल सिंग्स बिफोर देम ऑफ 10 years war in Troy। मिंस्ट्रल क्या होता है बेटा, मिंस्ट्रल मतलब ग्रुप ऑफ सिंगर्स,
है ना, वो ग्रुप ऑफ सिंगर्स, गायकों का समूह जो जगह जगह पे घूम घूम के किसी भी युद्ध के बारे में, किसी राजा महाराजाओं की, किन योद्धाओं की वीर गाथा के बारे में गाते हैं। तो कहता है अब तो वो मिनिस्ट्रल्स जो हैं वो घूम घूम के लोगों को उस 10 ईयर वॉर्स के बारे में बता रहे होंगे, 10 साल तक जो ट्रॉय में युद्ध चला था। एंड आवर ग्रेट डीड्स, और हमारे जो ये ग्रेट डीड्स हैं, हमारे जो ये महान कार्य हैं, कौन से, जो उन्होंने 10 ईयर्स तक वॉर में फाइट किया, एज हाफ फॉरगॉटन, उनको तो लोग आधा भूल चुके होंगे, है ना, अब तो उसको सब भूल गए होंगे। इज देयर कंफ्यूजन इन द लिटिल आइल, कंफ्यूजन मतलब डिसऑर्डर, तो कहते हैं उस छोटे से आइलैंड में तो अब अव्यवस्था फैल गई, डिसऑर्डर फैल गया होगा। लेट व्हाट इज ब्रोकन सो रिमेन, तो वो कहते हैं कि जो चीज टूट गई, जो चीज खराब हो गई, जो अव्यवस्था हो गई, जो डिसऑर्डर, जो कंफ्यूजन उस आइलैंड में हो गया, लेट इट रिमेन एज इट इज, बिकॉज दे डोंट हैव एनी डिजायर लेफ्ट इन देम टू वर्क, टू एनी labor, to do any labor. They don't want to move ahead because they are under the influence of that lotus fruit. है ना? So they are saying in their own, they are presenting arguments in their just to make themselves comfortable. वो अपने आप को comfortable feel करवाने के लिए एक के बाद एक argument दे रहे हैं सभी sailors, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम नहीं अब कहीं पे भी जाएंगे। The gods are hard to reconcile, कि गॉड्स जो हैं वो एक बार नाराज हो जाएं तो उनको वापस मनाना भी बड़ा मुश्किल है। इट इज हार्ड टू सेटल ऑर्डर वंस अगेन, दोबारा फिर ऑर्डर एस्टेब्लिश करना जो है इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। देयर इज कंफ्यूजन वर्स देन डेथ, ये जो डिसऑर्डर है इट इज मोर वर्स देन डेथ, ये जो अव्यवस्था होगी वहां पे आइलैंड पे वो तो डेथ से भी ज्यादा मुश्किल काम है। ट्रबल ऑन ट्रबल, पेन ऑन पेन, लॉन्ग लेबर, अनटू एज्ड ब्रेथ, सोर टास्क हार्ट्स, वॉर्न आउट बाय मेनी वॉर्स, कहता है एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक दुख, इतनी लंबी लेबर, मरते दम तक, ये सब बड़ा मुश्किल सा काम है उन लोगों के लिए। हार्ट्स का मतलब हम लोग जो थक चुके हैं इतने सालों तक वॉर कर करके। एंड आई इज ग्रोन डिम, और हमारी आईसाइट जो है वो भी डिम हो गई है विद गेजिंग द पायलट स्टार, है ना, स्टार्स को लगातार गेज कर करके, है ना। गेजिंग द पायलट स्टार क्या होता है? पोल स्टार एंड अदर स्टार्स विच इन द पास्ट गाइडेड द सेलर्स ऑन द हाई सी। पायलट स्टार क्या होता है? पोल स्टार्स। और भी ऐसे स्टार्स होते हैं जिनको जो ये सेलर्स हैं उससे उसको देख देख के उनको अपने शिप को डायरेक्शन देते हैं कि भी अब इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो कहता है कि लगातार इतने बड़े ओशन को क्रॉस करना, अपनी जर्नी सारी उससे कंटिन्यू करना, फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना, है ना, और वो युद्ध जो है ट्रॉय का जो है वो 10 साल तक चला। 10 साल में तो बहुत दुनिया चेंज हो जाती है, तो उनको लगा कि भी ये हमारे जो सोर टास्क टू हार्ट्स, सोर मतलब ये डिफिकल्ट काम है उन लोगों के लिए, हार्ट तो दिल कहते हैं ना, वो दिल जो कि थक चुके हैं इतने सालों तक युद्ध कर करके, आंखें भी बिल्कुल धुंधली हो गई हैं, आईसाइट भी बिल्कुल कमजोर हो गई है उस पायलट स्टार, पोल स्टार्स को देख देख के। सो दे डोंट हैव एनी डिजायर, any yearning left in them to move ahead, to reach their homeland, अपने घर जाने के लिए अब उनमें कोई हिम्मत नहीं रही। So I hope you must have understood this part of the poem, and so read it again and revise it. Last part of this poem we will do tomorrow in my next session. I mean we will do. Thank you.